अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, my dear child? Alhamdulillah, ma'am. Alhamdulillah. Okay. So let us start with our today's lecture. The previous lecture we were having the same topic, that was good manners mentioned in the Quran. That was actually a part 1 in which we have completed some of the good manners which are mentioned in the Quran. In today's lecture, again we will see, because there are many good manners that are mentioned in the Quran, it was not possible to complete it at a time. So today also we are going to see other good manners that are mentioned in the Quran. So before I start, I would like to give some of the instructions. If at all I am going fast या आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो please let me know. Okay? In between, if you are having any doubt, please tell me. I'll explain it again. Okay? So before starting, हमने previous lecture में जो सारी चीजें देखी थी उसको एक बार हम वापस से repeat करेंगे. वो सारे good manners हमने देखे थे, और good manner हमारे अंदर होना कितना ज्यादा important है ये भी हमने previous lecture में देखा था, तो वो मैं again एक बार repeat करूंगी. First of all, good manners क्या होते हैं? जो चीजें हमारे अंदर या जो अच्छाइयां हमारे अंदर होती हैं. Okay? The main concept why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent down to us was to perfect the character, to show the best character. If you see the Sirat, or if you learn about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will see that there are all the good manners mentioned. There are all the good manners in him. So उनको देखकर उनको यहाँ पर हमारे पास क्यों भेजा गया था? Just because to show the best of character. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the best creation of Allah. सबसे बेहतरीन creation थे अल्लाह के, और उनके अंदर सारे अच्छी qualities या सारे good manners उनके अंदर थे. It was reported to Aisha Raziyallahu Ta'ala Anhu, the wife of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, when she was asked about the character of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. जब आयशा Raziyallahu Ta'ala Anhu से Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam के character के बारे में पूछा गया, so what she said? She reported that his character was the Quran. जब उनसे पूछा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनका कैरेक्टर कुरान है. इन द सेंस अल्लाह ने जो कुछ कुरान में मेंशन किया है, जो कुछ हमें बताया है, उस एक एक बात पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल किया करते थे. तो ही वॉज द बेस्ट क्रिएशन. और वो क्यों भेजे गए थे हमारे पास? यही सारी चीजें हमें बताने के लिए कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है. At each and every step of your life आपको कोई ना कोई सीख मिलेगी ही उनकी लाइफ से, या हम कह सकते हैं हदीस के जरिए या सुन्नत के जरिए. और वो खुद कैसे अमल करते थे? His character was Quran, which means each and everything you will find in the Quran, he was a living example of it. When Aisha Raziyallahu Ta'ala Anhu was asked about him, वो क्या बोलती थी? That he is a walking, talking and living of the Quran. वो चलते भी थे तो कुरान के उससे चलते थे, तरीके से चलते थे. When he talked, when he lived, when he breathed, each and everything you will find in the Quran.
सो उसी में हमें देखना है कि अल्लाह ताला ने कौन से ऐसे अच्छी क्वालिटीज हमें बताई हैं जो हमें अपने अंदर लाना है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके, वो आज हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, गुड कैरेक्टर का हमारे अंदर होना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट nothing is more heavier on the day of judgment within the scale of an individual than a righteous character. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि आखिरत के दिन मिजान में जो सबसे भारी चीज होगी वो क्या होंगे? वो होंगे अच्छे अखलाक, दैट इज आर राइटियस कैरेक्टर, दैट इज आर गुड कैरेक्टर। तो इस छोटी सी हदीस से ही हमें गुड कैरेक्टर या गुड मैनर का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है कि हमारे लिए गुड मैनर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे अंदर वो क्वालिटीज होनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। करेक्ट। अब यहाँ पर डे ऑफ जजमेंट में जो सबसे भारी चीज होगी, नो अदर थिंग विल बी काउंटेड, कोई ऐसी चीज जो है भारी नहीं होगी। यहाँ पे मेंशन है कि जो सबसे भारी चीज होगी वो होंगे अच्छे अखलाक, वो है अच्छे कैरेक्टर्स, वो है अच्छे मैनर्स जो हमारे अंदर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से हमें एक गुड कैरेक्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। इट इज दैट the most beloved people to me on the day of judgment will be those who are having a good character. They will not only have a scale which is heavy with good deeds, they will also have the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They will also have a close spot with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब इस हदीस में भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि जो इंसान का कैरेक्टर अच्छा होगा वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा, उनको सबसे ज्यादा प्यारा होगा। वी कैन से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक तरफ उसका मीजान सबसे ज्यादा भारी होगा किस चीज से? वो है अच्छे अखलाक से, और उसी के साथ साथ वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नजदीक होगा। तो इस हदीस से भी हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि हम शुरू से ही अपने अंदर ऐसी आदतें या ऐसे मैनर्स अपने अंदर डालें जो हमारे लिए इस दुनिया में भी और दुनिया के बाद अब हमारी आखिरत में भी हमें कोई फायदा पहुंचाए। क्या होगा अगर हम अच्छे मैनर्स अपने अंदर लेकर आएंगे या हम किसी को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो क्या होता है? सामने वाला खुश हो जाता है, राइट। एंड हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था ना कि अगर हम किसी को खुश करते हैं तो क्या होता है? अल्लाह ताला हमको खुश करते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा? हम लोगों को भी खुश करेंगे, हम अपने अल्लाह को भी खुश करेंगे, और अगर हम दूसरों को खुशी देंगे तो क्या होगा? अल्लाह हमको खुशी देंगे। ठीक है। तो हमने ये देखा, कुछ इंपॉर्टेंस देखा, और एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए जानना कि द साइन ऑफ ईमान, एक ईमान का साइन आपको पता है ना, देयर आर 5 मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। फर्स्ट वन इज व्हाट? तौहीद, करेक्ट, दैट इज वननेस, करेक्ट। अब इसमें ही हमारे ईमान की जो साइन है, जो ईमान का जो सबसे बेस्ट साइन है वो क्या है? दैट इज हैविंग अ गुड कैरेक्टर। हमारे अंदर अगर गुड कैरेक्टर है दैट मीन्स हम ईमान वाले हैं। ओके। तो ये गुड कैरेक्टर्स हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं। पिछले जो हफ्ते में हमने जो गुड कैरेक्टर्स देखे थे उस पर एक बार और हम लोग जस्ट मैं एक ग्लैंस आपको बता रही हूँ। It is mentioned in the Quran in Al-Hajj, Surah Al-Hajj, that is in ayat number 30. Allah says, don't lie. Okay. The first thing what Allah Ta'ala is saying us is don't lie. So इससे Allah Ta'ala हमें क्या बता रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. And the curse of Allah is on those who are lying. Curse in the sense लानत होती है उस पर जो झूठ बोलता है. And the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most hated, जो सबसे नापसंद चीज है उनकी नजर में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, वो है झूठ बोलना।
दैट इज लाइंग, जो सबसे नापसंद है, ठीक है। सो वी शुड नॉट लाई, छोटा झूठ हो बड़ा झूठ हो, नो मैटर व्हाट इट इज, नो मैटर आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए सच बोलने पे, लेकिन आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। इफ यू लाई, क्या होगा, अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी सॉ डोंट स्पाई। स्पाई मतलब जासूसी करना, किसी के सीक्रेट्स को फाइंड करना। तो हमें ये काम नहीं करना है। अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है कि डोंट स्पाई और बैकबाइट ईच अदर। बैकबाइट मतलब किसी के पीठ पीछे कोई गलत बात करना, किसी के पीठ पीछे उनकी कमियों को निकालना या उनकी बुराइयों को निकालना, और उनको वो बात पता नहीं है कि आप उनकी पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। तो बैक बाइटिंग और स्पाइंग, स्पाइंग मतलब जासूसी करना, तो ये सारी चीजें भी हमें अल्लाह ताला ने कुरान में मना की है। दीज आर नॉट अमंग्स द गुड मैनर। नेक्स्ट, डोंट इंसल्ट। इंसल्ट मतलब किसी को, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना या किसी को उल्टा सीधा बोलना। सो अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी मेंशन किया है कि हमें क्या करना है, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी है। हमको किसी भी तरह के नेगेटिव अजम्पशंस अपने दिमाग में नहीं लेकर आना है अबाउट एनीवन। कोई भी शख्स है, अगर उसके बारे में आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेकर आना है, हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचना है, चाहे वो अच्छा हो गलत हो सही हो जो भी है, आपको हमेशा अच्छा सोचना है। नेक्स्ट हमने देखा था डोंट वेस्ट। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें कहा है डोंट वेस्ट, मतलब हमें कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो खाना हो सकता है, इट कैन बी योर फूड, इट कैन बी योर वेल्थ, पैसे हो सकते हैं, इट कैन बी योर स्ट्रेंथ, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी चीज आपको वेस्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट हमने देखा था फीड द पुअर। फीड द पुअर, जो लोग गरीब हैं या जो नीडी हैं उनको हमें फीड करना है, उनको हमें खिलाते रहना चाहिए। ये भी वन ऑफ द गुड मैनर्स। नाउ इन इस्लाम में पूछा गया कि सबसे बेस्ट एक्ट कौन सा है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया टू फीड द पुअर। ओके, तो ये इस्लाम का बेस्ट एक्ट है। तो हमें क्या चाहिए, जो नीडी है या जो पुअर है उनको हमें फीड करना है। डोंट बैकबाइट, ये भी हमने देखा कि किसी के पीठ पीछे कोई गलत बात नहीं करनी है, उनके फ्लॉज हमें नहीं निकालने हैं, उनकी बुराइयां नहीं निकालनी है पीठ पीछे। कीप योर ओथ। ओथ मतलब प्रॉमिस। अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या कोई वादा कर रहे हैं तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। ये कुरान में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हमें अपने प्रॉमिसेस पूरे करने चाहिए। आप जो भी बोल रहे हैं आपको सोच समझ के बोलना है, और अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे आपको पूरा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका भी बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉमिस पूरा हो तो आपको प्रॉमिस के साथ साथ क्या वर्ड यूज करना है, दैट इज इंशाअल्लाह। तो आपको इंशाअल्लाह बोलना है, तो आपका जो प्रॉमिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिस्ट्रेन योर एंगर। हमें कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। कोई भी बात हो, छोटी बात हो बड़ी बात हो, हमें किसी भी तरह से गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा क्या होता है, शैतान की तरफ से होता है, एंड इट इज अ वेरी बैड मैनर। गुस्सा एक ऐसी चीज है ना, जो हम गुस्से में जो कुछ भी बोल जाते हैं वो एक्चुअली हमारे दिल में नहीं होता है, दैट इज समथिंग रॉन्ग। और गुस्से की हालत में हम जो भी बोलते हैं हमें अंदाजा नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके, अगर हमें अपने ईमान को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमें अपने मैनर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से तरीके बताए हैं गुस्से पर कंट्रोल करने के, कि गुस्सा क्या होता है, गुस्सा एक आग की तरह होता है, और गुस्से को ठंडा करने के लिए, अगर गुस्सा एक आग है तो उसको ठंडा करने के लिए हमें क्या करना है, पानी का इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने बताया कि जब आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लें या आप वजू कर लें, इससे क्या होता है, गुस्सा शांत हो जाता है। एक और तरीका उन्होंने हमें बताया कि जब भी हमें गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हम अगर खड़े हैं तो हम बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, या क्या करें, अपनी पोजीशन को चेंज करें या उस जगह से हट जाएं। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से बचने का तरीका हमें बताया है। साथ ही साथ एक दुआ भी है जिससे हम गुस्से पर अपने कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमें लग रहा है कि हमें गुस्सा आ रहा है, सो वी शुड ऑलवेज से
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दिस इज अ दुआ फॉर एंगर। जब भी आपको गुस्सा है हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। दिस इज टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान। ओके, नेक्स्ट क्या है? डोंट स्प्रेड गॉसिप। किसी के बारे में कोई भी बात हमें फैलानी नहीं है, वो चाहे मतलब कोई बुरी बात हो या उसके अंदर की कमियां हो या उसकी बुराइयां हो, वो हमें उसके पीठ पीछे गॉसिप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट थिंक गुड ऑफ अदर्स। ये हमने पहले भी देखा कि हमें हमेशा अच्छा गुमान करना है लोगों के बारे में, चाहे जितना भी वो इंसान सही हो गलत हो, हमेशा उसके बारे में हमें अच्छा ही सोचना है। एंड व्हाट हैपेंस अगर हम नेगेटिव असम्पशंस करेंगे तो इट इज अ सिन, वो एक गुनाह है। तो हमें इस गुनाह से बचना है, हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना है। नेक्स्ट, पिछले लेक्चर में हमने देखा था बी गुड टू गेस्ट। अपने गेस्ट से हमें अच्छे से रहना है, मेहमानों से अच्छी तरह से पेश आना है, उनका ख्याल रखना है, उनका उनको उनको जितना प्यार देना है अच्छे से फीड करना है, मेहमान को अच्छी तरह से ऑनर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। ये भी बात अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन की है। एंड व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द वन हु बिलीव इन अल्लाह, मतलब जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, एंड द वन हु बिलीव इन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, दैट इज जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो क्या करते हैं? ये एक सिफत बताई है कि जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो अपने मेहमानों से अच्छी तरह से पेश आते हैं। तो ये सिफत उन्होंने बताई है हमें। नेक्स्ट, डोंट बी रूड टू पेरेंट्स। ये भी हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने यही पढ़ा था ना कि हमें अपने पेरेंट्स से रूड नहीं रहना है, उनको अच्छी तरह से एड्रेस करना है, जो भी हो हमें उन्हें उफ तक नहीं करना है। करेक्ट। और हमने क्या पढ़ा था कि वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू देम, वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू देम। वो चाहे सही हो गलत हो, हमें हमेशा उनसे अच्छी तरह से पेश आना है। करेक्ट। what happens? The Jannah lies within the feet of your mother, correct? And paradise, the door of paradise is your father, correct? तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, that we should always respect our parents and we should supplicate for them. हमें उनके लिए दुआ भी करनी है। कैसे? क्या दुआ करनी है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमने ये पढ़ा था ना, एंड आई होप आप लोग दुआ करते होंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। यस, माशाल्लाह। नेक्स्ट वी विल सी डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन द कुरान बाय अल्लाह। अल्लाह ताला इज सेइंग दैट डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। चाहे कोई भी अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, उनके अंदर की बुराई हो, कमी हो, उस चीज का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर वी शुड कीप निक नेम्स। ये भी अल्लाह ताला ने कुरान में हमें मेंशन किया है कि हमें किसी के निक नेम्स नहीं रखने। मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, हम निक नेम्स रखते हैं। करेक्ट। तो हमें ये चीज भी नहीं करनी चाहिए। दिस एक्ट इज नॉट गुड इन द आईज ऑफ अल्लाह। ओके, नेक्स्ट वी विल सी वॉक इन अ हम्बल मैनर। वॉक इन अ हम्बल मैनर, हमें अच्छी तरह से जमीन पर चलना है, ना ज्यादा तन के चलना है, ना ज्यादा गुरूर में चलना है, ज्यादा प्राइड में नहीं चलना है। यहाँ पे कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने सिफत बताई है द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, मतलब जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो क्या करते हैं? दे वॉक हम्बली। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, दैट इज रिस्पॉन्ड टू इविल विद गुड। कोई भी आपको अगर कुछ बुरा कहता है या कुछ बुरा करता है तो उसका भी जवाब हमको अच्छी तरीके से ही देना है और सही तरीके से ही देना है। ये भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान में मेंशन करके बताया है कि अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है या आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है, स्टिल यू शुड बी गुड टू देम। उनको हमें उनसे हमें अच्छी तरह से पेश आना है। ठीक है, तो ये सारे गुड मैनर्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज हम थोड़े और जो गुड मैनर्स जो मेंशन है कुरान में, जो हमारे लिए अपने अंदर लाना जरूरी है, उसे आज हम और देखेंगे। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू।
Okay, I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So let's start with good manners mentioned in the Quran part 2. आगे भी देखेंगे कि और से और कौन कौन से गुड मैनर्स जो कुरान में मेंशन है, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा. ओके, so the first one for today we will see is speak gently even to the leaders of disbelief. ये सूरह ताहा में, that is surah number 20 in the Quran, and in ayat number 44 what Allah Ta'ala is saying to us, speak gently. Gently मतलब क्या होता है? Softly बात करना, किसी से नरमी से बात करना या प्यार से बात करना, उसे हम कहेंगे speak gently. यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या बोल रहे हैं? इवन टू द लीडर्स ऑफ डिसबिलीव. डिसबिलीवर्स कौन होते हैं? जो ईमान नहीं लाते हैं, या जो हम कह सकते हैं, जो अगर हम नॉर्मली कहें तो इट कैन बी नॉन मुस्लिम्स, या जो लोग जो ईमान नहीं लाते हैं. अगर वो डिसबिलीवर भी है तो भी उससे आपको अच्छे से बात करनी है. यू शुड बी सॉफ्ट, यू शुड बी जेंटल. कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बोलनी है जो उनके दिल को तकलीफ पहुंचाए या जो उनको हर्टफुल हो. ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो डिसबिलीवर है उससे हमें जेंटली बात करनी है. तो जाहिर सी बात है, जो हमारे दोस्त है, या हम कह सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, और जो कोई भी है, हमें सबसे अच्छी तरह से बात करनी है, जेंटली बात करनी है, सॉफ्ट बात करनी है. योर वॉइस शुड नॉट बी लाउड. एंड व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज अबाउट स्पीकिंग गुड. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन यहाँ पर सिफत बयान की है कि जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, दे स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट. इसका मतलब या तो वो अच्छा बोलते हैं या तो वो चुप रहते हैं. इसके बीच का और कोई आपके पास तरीका नहीं है. आप रूड नहीं बात करना है, आपको किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है. Okay, so this you should always keep in mind while talking to others, that we should always be humble and gentle to them. Next हम लोग देखेंगे, don't criticize small contribution of others. In Surah Tauba, that is surah number 9 in the Quran, and in ayat number 79 Allah Taala क्या फरमा रहे हैं? That we should not criticize. Criticize करना मतलब किसी को नेग्लेक्ट करना, या हम कह सकते हैं किसी को इग्नोर करना, किसी की चीज को, या किसी को कोई बुरा भला कहना. तो अगर वो आपके लिए कोई छोटी सी भी चीज कर रहा है, कोई भी अगर छोटी चीज कर रहा है या कोई छोटी सी हेल्प कर रहा है या कोई एक छोटी सी चीज आपको दे रहा है, तो वो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन भी ना दूसरों के, वेदर इट इज टू यू और वेदर इट इज टू दी सोसाइटी, अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन है ना, तो उसको हमें बुरा भला नहीं कहना है. ठीक है, ये अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया है. नेक्स्ट वी विल सी ऑपरेशन और करप्शन इज वर्स देन किलिंग. सूरह बकरा, दैट इज सूरह नंबर 2 इन द कुरान, एंड इन आयत नंबर 217 अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब किसी के ऊपर जुल्म करना. ओके, ऑपरेशन इन द सेंस किसी के ऊपर जुल्म करना, और करप्शन इट इज टू बी डिसऑनेस्ट, और टू कोई चीज गलत करने को हम करप्शन कह सकते हैं. डिसऑनेस्ट होना या इलीगल काम करना, उसको करप्शन कहते हैं. तो किसी पर जुल्म करना, वो जुल्म किसी भी तरीके से हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना हो, या किसी को कोई ऐसी बात बोलने जो उनको हर्ट कर सकती है, तो ऐसी चीजों से हमें बचना है. और अल्लाह ताला ने कुरान में इस सूरह में क्या हमें मेंशन किया है कि इट इज वर्स देन किलिंग. किलिंग मतलब किसी का मर्डर करना या किसी को मार डालना. तो अगर हम किसी पर जुल्म करते हैं या किसी तरह का करप्शन करते हैं, तो वो किसी को मार देने से ज्यादा बदतर है. तो इस चीज से ही हमें पता चल जा रहा है कि किसी पर जुल्म करना या किसी से डिसऑनेस्ट होना, या हम कह सकते हैं झूठ कहना किसी से किसी वजह से, ये सारी चीजें किसी की कत्ल करने से ज्यादा बुरी है. तो जितना हो सके हमें चाहिए कि हम इन चीजों से बचें. नेक्स्ट इज प्रीच टू अदर्स इन अ गुड एंड वाइज मैनर. प्रीच करना मतलब किसी को समझाना हम कह सकते हैं, या किसी को एड्रेस करना.
तो आप जब भी किसी के पास जाते हैं या आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को कोई चीज समझा रहे हैं या किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? वी शुड ऑलवेज बी गुड। गुड कैसे? वही चीजें हैं कि अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सॉफ्टली बात करनी है, जेंटली आपको बात करनी है, उसको अच्छी तरह से बात करनी है एंड इन अ वाइस मैनर। वाइस इन द सेंस समझदारी से। अगर आप किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उनको आपको कैसे एड्रेस करना है? अच्छे से एड्रेस करना है और समझदारी से उनको, जो भी उनकी प्रॉब्लम है या जो भी उनको इश्यूज है, उसको आपको समझदारी के साथ आपको उन्हें समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट कॉल समवन अ डिसबिलीवर विदाउट नोइंग। In Surah An-Nisa, that is Surah number 4 of the Quran, and in ayat number 94, what it is saying, what Allah Ta'ala is saying us, that don't call someone a disbeliever. हम किसी के अटायर या किसी को देखकर ये जज नहीं कर सकते that he or she is a believer or not. वो उसका ईमान कितना ज्यादा मजबूत है। ईमान का हाल क्या है? हमारी नीयत है। करेक्ट। हम जो दिल में सोचते हैं, हमें हमारे दिल में जो अल्लाह के लिए, उनके रसूल के लिए जो प्यार है, या हम जानते हैं कि हमारे दिल में हम कितना इन चीजों पर यकीन रखते हैं, तो वो नियत है। और नियत का हाल अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता है। करेक्ट। आप किसी का अटायर, अगर कोई पर्दा नहीं कर रहा है, तो आप उसको देखकर नहीं बोल सकते हैं कि वो बिलीवर है या डिसबिलीवर है। जब तक आपको उसके बारे में सारी चीजें या सारी बातें नहीं पता है, तब तक आप उसे जज नहीं कर सकते कि वो सही है, गलत है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है या नहीं रखता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं कि हमें किसी को भी डिसबिलीवर या किसी को भी हमें ये नहीं कहना है कि वो ईमान वाला नहीं है या वो जहन्नुम में जाएगा। इस तरह से हमें किसी को नहीं कहना है जब तक हमें कोई बात पता ना हो। और जाहिर सी बात है, नियत हमें नहीं पता है ना कि सामने वाला जो कुछ कर रहा है उसकी नियत क्या है, या हम कह सकते हैं उसके दिल में क्या है। वो सारी चीजें तो हम नहीं जानते ना। तो हमें चाहिए कि हमें किसी को भी गलत तरीके से डिसबिलीवर या कोई चीज ऐसी नहीं बोलनी चाहिए विदाउट नोइंग। ये सिर्फ एक बिलीवर और डिसबिलीवर की ही बात नहीं है, बल्कि अगर आप किसी इंसान के बारे में कोई चीज जानते हैं या आपको कोई नेगेटिव अजम्पशन है, तो उस चीज के बारे में भी आपको नहीं बोलना चाहिए जब तक आपको उसके बारे में पूरा नहीं पता है। ठीक है। सो हैविंग हाफ नॉलेज एंड स्पीकिंग इज समथिंग नॉट गुड, इट इज अगेंस्ट द राइटियस कैरेक्टर। ओके। तो दिस इज वन ऑफ द गुड मैनर दैट हमें किसी को भी किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे या जाने हमें क्या करना है? नहीं बोलना है। नेक्स्ट इज seek permission before entering someone's room. Now in Surah An-Nur, that is Surah number 24 in the Quran, and in ayat number 59, what Allah Ta'ala is saying us, see कितनी छोटी सी बात है, but still in the Quran Allah has mentioned them. Why Allah has mentioned them? So that we can be the best person. ये सारे good characters हम अपने अंदर ला सकें ताकि it benefits in our life and even in the life hereafter. तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो अल्लाह ताला हमें यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं या गाइड कर रहे हैं। क्या है वो? कि हमें किसी के रूम में घुसने से पहले क्या करना चाहिए? परमिशन लेनी चाहिए। इधर हमें नॉक करना चाहिए डोर, और या हम आवाज लगाकर पूछ सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या आप सिंपली नॉक कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है कि हमें किसी के भी रूम में विदाउट परमिशन एंटर नहीं करना है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर तुम परमिशन मांगो और अगर तुम्हें परमिशन नहीं मिलती है तो तुम वापस आ जाओ। तुम्हें अलाउड नहीं है विदाउट एंटरिंग समवन्स रूम विदाउट परमिशन। ओके। सो वी शुड ऑलवेज सीक परमिशन। ये क्या है? एक छोटी सी चीज है। करेक्ट। एक बहुत ही छोटी सी आदत है, पर ये छोटी आदत भी हमारे लिए कितना ज्यादा फायदा कर सकती है। राइट। अल्लाह भी खुश हो जाएंगे बिकॉज अल्लाह ताला का ऑर्डर है, अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया है। करेक्ट। even these are the qualities which were there in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As you know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the best of creation. और वो बेस्ट क्यों थे? just because of his
राइट मैनर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुड अखलाक की वजह से वो एक बेस्ट क्रिएशन थे अल्लाह के। करेक्ट? तो छोटी छोटी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अल्लाह को भी खुश करेंगे, हम दुनिया में लोगों को भी खुश करेंगे, and it will be beneficial for us. Next, know your enemies can become your close friends. Surah Hamim Sajda, that is surah number 41 in the Quran, and in ayat number 34, what Allah Ta'ala is saying, Allah Ta'ala is telling us कि ये बात जान लो कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना है, या किसी के बारे में हमें किसी के लिए हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो आपके दुश्मन है तो ऐसा नहीं है, वो कल आपको आपके क्लोज फ्रेंड भी बन सकते हैं, आपके दोस्त भी बन सकते हैं। तो हमें चाहिए कि वो चाहे हमारी एनिमी हो या चाहे जो भी हो, हमें क्या करना है, अच्छी तरह से पेश आना है। हमने पहले भी देखा ना, डू इविल, अगर कोई आपके साथ कुछ इविल कर रहा है तो वी शुड ऑलवेज बी गुड टू देम। ठीक है? तो अगर आपकी एनिमी है, अगर आपको लगता है आपके दुश्मन है, आपके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, स्टिल आपको उनसे अच्छी तरह से पेश आना है, बिकॉज अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है कि वो कल को तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मैनर वी विल सी दैट इज मेंशन्ड इन द कुरान इज don't turn your cheek away from people in arrogance. In Surah Luqman, that is surah number 31 in the Quran, and in ayat number 18, Allah Ta'ala ने क्या कहा? Don't turn your cheeks away from people in arrogance. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से एड्रेस कर रहे हैं, या रास्ता चलते ही आप किसी से मुलाकात करते हैं, तो आपको अपने चीक्स टर्न नहीं करने हैं, मतलब अपना चेहरा नहीं फेरना है। एरोगेंस इन द सेंस, किसी प्राइड में हम कह सकते हैं, या किसी चीज के घमंड में, तो ये काम हमें नहीं करना है। इट कैन बी हर्टफुल टू अदर, और ये क्या होगा, दिस इज नॉट फ्रॉम द राइटियस कैरेक्टर। ये एक अच्छा मैनर नहीं है, ये एक अच्छी आदत नहीं है कि हम किसी को देखकर अपना चेहरा फेर लें। आपने तो सुना होगा ना, दैट स्माइलिंग इज ऑल्सो अ सदका। किसी को देखकर स्माइल करना भी एक सदका है। तो हमें क्या करना है, चीक्स टर्न नहीं करना है, बल्कि वो जो भी हो, अगर आप उन्हें पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, हमें क्या करना है, उनको ग्रीट करना है। ग्रीट हम कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम करें, इस तरह से हम ग्रीट करते हैं। और एल्स अगर आप राह चल रहे हैं, आप ग्रीट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू स्माइल। बट यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली हमें कुरान में मेंशन करके बताया है कि हमें क्या करना है, अपना चेहरा नहीं फेरना है। किसी घमंड में या किसी भी वजह से हमें किसी के लिए चेहरा अपना नहीं फेरना है। Next, we will see forgive others as you would like Allah to forgive you. In Surah An-Nur, that is Surah number 24 of the Quran, and in Ayat number 22, what Allah Ta'ala is saying us कि forgive others, हमें दूसरों को माफ करना है। अब कैसे माफ करना है? As you would like Allah to forgive you. कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अगर हम कोई गलती कर देते हैं या हमसे कोई गुनाह हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द हमें माफ कर दे। एंड वी ऑल नो दैट अल्लाह इज गफूरुर रहीम, अल्लाह इज ऑलवेज फॉरगिविंग, करेक्ट? तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं या अल्लाह के उसमें कोई अगर हम गुनाह कर बैठते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं ना कि अल्लाह पाक हमें जल्दी से माफ कर दे। तो जितनी ज्यादा जल्दी हमें अल्लाह की माफी चाहिए ना, उतनी ही ज्यादा जल्दी हमें चाहिए कि हम दूसरों को माफ कर दें। ओके? तो अगर कोई भी कुछ गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, या जो भी है, अगर आपको उससे दुख पहुंचा है, किसी तरह का आपको हर्ट महसूस हुआ है, स्टिल यू शुड फॉरगिव अदर्स। कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, आपको उन्हें माफ करना है, उतना ही जल्दी जितना जल्दी आप अल्लाह ताला से माफी की उम्मीद रखते हैं। ओके? नेक्स्ट इज वी विल सी डोंट ऑर्डर अदर्स टू डू गुड while forgetting it yourself. In Surah Baqarah, that is Surah number 2 of the Quran, and in ayat number 44, Allah Ta'ala क्या बोल रहे हैं कि किसी को अच्छाई का हुक्म मत दो जब तक तुम खुद उस पर अमल नहीं करते। ओके? जब तक आप खुद अमल नहीं करते किसी चीज पर,
किसी अच्छी आदत पर, या हम कह सकते हैं किसी अच्छे मैनर पर जब तक आप खुद अमल नहीं करते, यू आर नॉट अलाउड टू ऑर्डर समवन एल्स। जस्ट से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को खड़े होकर पानी पीता देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या बोल देंगे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हमारे पास सहूलियत है, हम बैठकर पी सकते हैं, तो हमें क्या करना है, बैठकर पानी पीना है। करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि बैठकर पानी पियो, तो आपको पहले खुद उस पर अमल करना है। आपको खुद ध्यान देना है कि जब भी आप पानी पी रहे हैं तो आप हमेशा बैठकर पिए। जब आप खुद अमल करेंगे तब आपको वो चीज दूसरों को बतानी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया है कि अगर तुम खुद जो काम नहीं करते हो वो दूसरों को हमें ऑर्डर नहीं करना है। और अगर हम चाहते हैं कि किसी को हम ऑर्डर करें या किसी का अच्छा करें, तो हमें क्या करना है, पहले खुद उस पर अमल करना है। हम अमल करेंगे तो वो खुद ब खुद सामने वाले को हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, और वो हमसे देखकर हमको जो है सीख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी, be patient with your teachers and follow his instructions. In Surah Al-Kahf, that is surah number 18 and in ayat number 67 to 69, अल्लाह ताला ने वहां पे क्या मेंशन किया है, बी पेशेंट विथ योर टीचर्स। अल्लाह ताला ने हमको ये हुक्म दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि हमें क्या करना है, बी पेशेंट विथ योर टीचर्स। हमें अपने जो टीचर्स हैं या हमें जो हमें जो सही गलत सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उनसे हमें क्या करना है, अच्छी तरह से पेश आना है। वी शुड बी पेशेंट विद देम, वी शुड बी हम्बल विद देम, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू देम, वी शुड बी काइंड टू देम। उनसे हमें अच्छी तरह से पेश आना है एंड हमें क्या करना है, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। वो जो भी हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसे हमें फॉलो करना है। तो अगर टीचर आपको कोई ऑर्डर करती है या आपको कोई काम देती है या आपको बोलती है कि ये काम करो, तो आपको क्या करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके, ये अल्लाह ताला का हुक्म है हमारे लिए कि हमें अपने टीचर से अच्छे से पेश आना है और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और साथ ही साथ उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। Next, we will see on the screen, you can see, don't frown, turn away or neglect those who come to you. Okay, यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, don't frown. Frown मतलब to show your anger. किसी को गुस्सा दिखाना हम उसको फ्रोन कहेंगे, या टर्न अवे और नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट इन द सेंस किसी को इग्नोर करना। अगर ये सूरह अबस में, दैट इज सूरह नंबर 80 ऑफ द कुरान एंड आयत नंबर 10, व्हाट अल्लाह ताला इज सेइंग दैट अगर आपके पास कोई आ रहा है, इफ समवन इज एड्रेसिंग टू यू, तो हमें क्या करना है, उनको गुस्से उनसे उनको जो है उनको गुस्सा नहीं दिखाना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई आपके पास आ रहा है, आपसे बात करने आ रहा है, या हम कह सकते हैं आपसे मिलने आ रहा है, या नो मैटर व्हाट द रीजन इज, इफ समवन इज कमिंग टू यू, यू शुड ऑलवेज बी गुड टू देम। अच्छी तरह से बात करें उनको। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प करें, कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई टू गाइड देम, ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन विद देम, उनकी जितना ज्यादा हो सके मदद करें। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, if unable to help a needy person, at least speak nice words to them. In Surah Bani Israel, that is Surah number 17 in the Quran and in ayat number 28, what Allah Ta'ala is saying to us कि अगर कोई नीडी है, अगर कोई जरूरतमंद है, if that person is coming to you, और अगर आप किसी वजह से या किसी तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें चाहिए कि हम उनसे अच्छी तरह से बात करें। वेदर इट कैन बी एनीवन, कोई गरीब है या कोई फकीर है, आपसे आकर पैसे मांग रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उनको क्या प्यार से या अच्छी तरह से मना भी कर सकते हैं। करेक्ट, अगर कोई आपसे खाना मांग रहा है या कोई भी चीज है, कोई हेल्प चाहिए किसी को, और अगर आप उस चीज में हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि कम से कम हम उनसे अच्छी तरह से बात करें और अच्छे वर्ड्स यूज करें उनके साथ।
ठीक है, अच्छे वर्ड्स जिससे अगर उनको कोई तकलीफ हो तो उसमें वो आराम मिल जाए उनको, या किसी तरह का सुकून हम दे पाए उनको, तो इस तरह से हमें ट्रीट करना है। नेक्स्ट वी विल सी, बी लीनियंट टू दोज अंडर यू एंड कंसल्ट देम इन मैटर्स। In Surah Al Imran, that is Surah number 3 in the Quran, and in ayat number 159, what Allah Ta'ala is saying, that be lenient. Lenient matlab humble रहना. Lenient, we can say humble रहना to those under you. मतलब under you in the sense जो आपसे छोटे हैं, ठीक है, जो आपसे छोटे हैं इनके साथ हमें lenient रहना है, उनके साथ हमें humble रहना है। ये नहीं, अक्सर होता है ना, भाई भाई बहन में भी ऐसा होता है कि जो बड़ा होता है व्हाट दे डू, दे आर बिट अ काइंड ऑफ रूड, करेक्ट। तो जो आपसे छोटे हैं ना, तो आप चाहे बड़े हो लेकिन आपको उनके साथ भी अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना है। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कंसल्ट देम इन मैटर्स। अगर वो कोई प्रॉब्लम में है, उनको कोई हेल्प चाहिए या किसी चीज का सोल्यूशन उनको चाहिए, तो आपको क्या करना है, उनको कंसल्ट करना है, उनको सही क्या है गलत क्या है ये सिखाना है, ये समझाना है उनको, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है हमें कुरान में कि हमें अपने छोटों से अच्छी तरह से रहना है, उनके साथ रिस्पेक्टफुल हम्बली रहना है, लीनियंट रहना है, और उनको जो भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है या मैटर है, कोई किसी तरह से कोई गाइडेंस देना है, हेल्प करना है, तो आपको हमेशा उन्हें कंसल्ट करना है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी, those who can should continue to spend those who are fortunate. In Surah An-Nur, that is Surah number 24 of the Quran and ayat number 22, what Allah Ta'ala is saying to us, that अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी है कि वो खर्च कर सकता है, या जो हम कह सकते हैं ना जो ब्लेस्ड है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे खर्च करते रहना चाहिए उनके ऊपर जो कमजोर है, या जो हम कह सकते हैं जो लेस फॉर्चुनेट है। ओके, तो अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर हम इतना, सिर्फ पैसों की ही बात नहीं है, वो चाहे फिर हमारी कोई स्ट्रेंथ हो, या हमारे अंदर कोई ऐसी आदत हो, या हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छाई हो जिसके जरिए हम दूसरों पर खर्च कर सके, या जिसके थ्रू हम दूसरों को सिखा सके, समझा सके, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कमजोर है, कोई आपसे छोटा है, तो उसके लिए आपको स्पेंड करना है, वेदर इट इज योर टाइम, वेदर इट इज योर वेल्थ, वेदर इट इज योर मैनर, एनी काइंड ऑफ मैनर, उनको हमेशा सही गलत बताना है, समझाना है, ये आपका काम है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी, डोंट एंटर होम्स विदाउट परमिशन एंड रिटर्न इफ रिफ्यूज्ड एंट्री। Surah An-Nur, again that is Surah number 24 in the Quran, and in ayat number 27 and 28, अल्लाह ताला ने क्या बोला है, डोंट एंटर होम विदाउट परमिशन। ये हमने पहले भी देखा है ना कि किसी के रूम में हमें बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए। We should always seek permission while entering the room, correct? इन नेक्स्ट भी अल्लाह ताला ने कुरान में एक और बार मेंशन किया है कि किसी के घर में घुसने से पहले, किसी के घर में एंटर करने से पहले हमें क्या करना है, हमें परमिशन लेनी है। अल्लाह ताला हैज ऑर्डर्ड अस दैट वी आर नॉट अलाउड टू एंटर समवन्स होम विदाउट परमिशन। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो चाहे रूम हो, वो चाहे फिर किसी का घर हो, अगर आप परमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको परमिशन लेना है। विद एंटरिंग विदाउट परमिशन इज अ बैड मैनर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, परमिशन लेना है। और अगर जब हम परमिशन ले रहे हैं और अगर हमें रिफ्यूज कर दिया जाता है, लाइक हमें मना कर दिया जाता है, अगर आप किसी के कमरे को नॉक कर रहे हैं और अगर उसने मना कर दिया कि अभी नहीं आना है आपको कमरे के अंदर, तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट रूम जब तक आपको हाँ या उनका परमिशन नहीं मिल जाता। सेम वे किसी के घर में जाने से पहले आपको पहले परमिशन लेना है। अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो आप, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द होम, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नाउ दीज वर द मेजर गुड मैनर्स जो हमने आज देखा, दैट आर मेंशन इन द कुरान। लास्ट में ये भी कुछ गुड मैनर्स हैं जो कुरान में मेंशन है, इसको भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। डोंट से व्हाट यू डोंट डू, ये हमने शायद पहले भी पढ़ा है ना, कि हम जब तक हम खुद अमल नहीं करते
तब तक हमें दूसरों को उसका ऑर्डर नहीं देना है या उसको गाइड नहीं करना है। सो डोंट से, या कोई बात ऐसी नहीं बोलनी है जो आप नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ झूठ में आ जाएगा। आपके अंदर कोई आदत नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरों से कहते हैं कि मैं ये करती हूँ या मैं करता हूँ, तो ये एक काइंड ऑफ झूठ में हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो तुम नहीं करते हो वो तुम्हें बोलना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कीप योर ट्रस्ट एंड प्रोमिसेस। ये भी हमने पहले देखा कि हमें कीप योर ओथ में हमने देखा था ना कि अगर हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या हम किसी से कोई वादा कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसको हमेशा पूरा करना है। पूरी कोशिश करें कि जो वादा या जो प्रॉमिस हमने किया है उसे हम पूरा कर सकें, ठीक है। और हमें क्या करना है, अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी को कुछ बोल रहे हैं तो हमें उसके साथ इंशाल्लाह यूज करना है, ठीक है। डोंट इंसल्ट अदर फॉल्स गॉड। फॉल्स गॉड इन द सेंस जो बुत होते हैं उनको भी हमें इंसल्ट नहीं करना है, नो मैटर व्हाट इट इज। डोंट डिसीव पीपल इन ट्रेड। ट्रेड इन द सेंस आप कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं या आप कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, तो उसमें ना किसी को धोखा नहीं देना है। ऑलवेज ऑनेस्ट रहना है और हम्बल रहना है, ठीक है। डोंट टेक आइटम्स विदाउट राइट। किसी से बिना पूछे या बिना किसी हक के या बिना किसी से पूछे किसी का सामान आपको नहीं लेना है। हम स्कूल्स में जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस गुड मैनर को अपने अंदर लाना, कि कई बार ऐसा होता है कि कभी हमें किसी से पेंसिल बोरो करना पड़ता है, कभी रबर या शार्पनर बोरो करना पड़ता है, तो हमें क्या चाहिए कि हम उनसे परमिशन लेकर वो चीज यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस। हमें अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, वो चाहे किसी से भी हो। इट कैन बी विथ योर टीचर्स, इट कैन बी योर रिलेटिव्स, इट कैन बी योर नेबर्स, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, आपसे छोटा हो बड़ा हो, किसी से भी आपको अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। जो क्वेश्चंस का आंसर्स जानना जरूरी नहीं है वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए, ओके। ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, तो हमें क्या चाहिए कि हमें ज्यादा सवाल नहीं करना है। डोंट बी मिजरली नॉट एक्स्ट्रावेगेंट। नाउ यहाँ पे मिजरली इन द सेंस या ना, हमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि हमें ज्यादा कंजूस भी नहीं होना है और ज्यादा खर्च करने वाला भी नहीं बनना है, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि कोई जरूरत हो और उसकी वजह से हम किसी चीज में कंजूसी दिखाएं, या ऐसा भी ना हो कि हम कुछ ज्यादा फिजूल खर्च करें, ठीक है। डोंट कॉल अदर्स विद बैड नेम्स। ये भी हमने पहले देखा कि हमें किसी को निक नेम नहीं रखने हैं किसी के, और किसी को बैड नेम से नहीं पुकारना है, ठीक है। डोंट क्लेम योरसेल्फ टू बी प्योर। आपको ये क्लेम नहीं करना है कि मैं अच्छी हूं या मैं अच्छा हूं, ओके। स्पीक नाइसली इवन टू द इग्नोरेंट। हमें अच्छी तरह से बात करना है इवन टू द इग्नोरेंट, इवन टू द पर्सन हु इज नॉट स्पीकिंग गुड टू अस, वी कैन से दोज हु आर नेग्लेक्टिंग अस, या हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, उनसे भी हमें प्यार से बात करना है। तो अल्लाह ताला ने बोला है उनसे भी प्यार से बात करना है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमसे अच्छे से पेश आते हैं हमें क्या करना है, उनसे और ज्यादा अच्छे से पेश आना है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करें, ओके। डोंट आस्क फॉर रीपेमेंट फॉर फेवर्स। अगर आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो हमें क्या करना है, एक तो उस एहसान को जताना नहीं है। एहसान इन द सेंस क्या, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या किसी को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, यू नो दैट इट इज अ गुड मैनर, तो उस चीज का रीपेमेंट हमें नहीं मांगना चाहिए, उसका रिवॉर्ड हमें उससे नहीं मांगना चाहिए। जो अच्छा काम हम कर रहे हैं हमारे दिल में ये नियत होनी चाहिए कि अल्लाह देख रहे हैं और हम जो कर रहे हैं दैट इज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अगर हमारे दिल में ये नियत होगी तो विदाउट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ रीपेमेंट, विदाउट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड, अल्लाह ताला विल डेफिनेटली गिव यू द रिवॉर्ड, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि लोगों से किसी के एहसान का रीपेमेंट या रिवॉर्ड नहीं मांगना है, ठीक है। मेक रूम फॉर अदर्स एट गैदरिंग। अगर आप किसी गैदरिंग में हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको क्या करना है, जगह, मेक रूम इन द सेंस क्या होता है,
जगह देनी है। जैसे आपसे कोई बड़ा खड़ा हुआ है और आप बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनको सीट ऑफर करनी है, ठीक है। आप खुद उठ सकते हैं और वो बैठ सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ एनिमी वांट पीस देन एक्सेप्ट इट। ये भी एक गुड मैनर में है कि अगर एनिमी, कोई दुश्मन, वो अगर पीस चाहता है, पीस इन द सेंस सुकून चाहता है, या अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, अगर वो चाहता है कि वो अब झगड़ा खत्म हो जाए या आप चुप हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को, उस पीस को वहां पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके। रिटर्न अ ग्रीटिंग इन अ बेटर मैनर। अगर आपको कोई ग्रीट कर रहा है, इन इस्लाम हाउ वी ग्रीट ईच अदर, अस्सलाम वालेकुम, करेक्ट। एंड ग्रीटिंग इन अ बेटर मैनर कैन बी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, करेक्ट। तो ऑलवेज हमें प्यार से और अच्छी तरह से लोगों को ग्रीट करना है। दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कुरान बाय अल्लाह। अल्लाह इज ऑर्डरिंग अस ऑल दीज थिंग्स। डोंट रिमाइंड अदर ऑफ योर फेवर्स। अगेन, अगर आपने किसी पर एहसान किया है, कल अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको उसे रिमाइंड नहीं करना है कि मैंने तो ऐसे वक्त पे आपकी मदद की थी ना। इस तरह से आपको अपने जो फेवर्स हैं उसके बारे में रिमाइंड नहीं करना है। ओके। मेक पीस बिटवीन फाइटिंग ग्रुप्स। अगर कोई ग्रुप है या दो लोग हैं, अगर उनमें झगड़ा हो रहा है या फाइट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वी शुड ट्राई टू मेक पीस बिटवीन देम। उनके बीच में झगड़े का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना है, या उस झगड़े को खत्म करवाने की कोशिश करना है। लोअर योर वॉइस एंड टॉक मॉडरेटली। जब भी हम बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमारा जो वॉइस है वो हमेशा लो रहे, ज्यादा तेज आवाज में हमें बात नहीं करनी है। एंड टॉक मॉडरेटली, अच्छी तरह से नॉर्मल वे में हमें बात करनी है। डोंट लेट हेट्रेड कॉज यू टू बी अनजस्ट। अगर आपको कोई शख्स नहीं पसंद है, तो उसमें कोई अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देर आर टू ऑफ योर फ्रेंड्स, एक फ्रेंड आपके बहुत ज्यादा क्लोज है और एक उतना क्लोज नहीं है, और अगर उन दोनों के बीच कोई मसला हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फ्रेंड आपके सबसे ज्यादा क्लोज है आप उसकी साइड लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई शख्स नहीं पसंद है या कोई शख्स आपसे इतना क्लोज नहीं है, तो भी अनजस्टिस वहां पर नहीं होना चाहिए। डोंट आस्क टू मेनी फेवर्स फ्रॉम पीपल। लोगों के ज्यादा एहसान नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक मच हेल्प फ्रॉम अदर्स। हेल्प कह सकते हैं या एहसान कह सकते हैं। अल्लाह इज देयर टू हेल्प अस, राइट। इज देयर एनीथिंग कि कभी आप अल्लाह के पास गए हो, आपने अल्लाह से कहा हो कि अल्लाह मेरी मदद कर दीजिए, और अल्लाह ने आपकी मदद ना की हो? ऐसा तो नहीं होता है ना। एंड हु इज द बेस्ट हेल्पर? देयर इज नो वन अदर देन अल्लाह हु कैन हेल्प यू बेस्ट, करेक्ट। तो अगर हमें कोई चीज चाहिए, किसी चीज की जरूरत है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें वो अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह से मांगने के बाद फिर हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ग्रीट पीपल व्हेन एंटरिंग देयर होम। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, इफ यू आर एंटरिंग समवन्स होम, वेदर इट कैन बी योर ओन होम, और अगर आप किसी और के घर भी जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ग्रीट करना है। और ग्रीट हम कैसे करते हैं, अगेन अस्सलाम वालेकुम, करेक्ट। तो इस तरह से हमको ग्रीट करना है। ग्रीट यहाँ पर सिर्फ ये नहीं दिया है कि एंटरिंग देयर होम, अगर आप किसी के घर में घुस रहे हैं तो ही ग्रीट करना है। इट कैन बी एनीवन, टीचर हो, आपकी फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, योर पेरेंट्स, योर नेबर्स, जो भी हो, आपको अच्छी तरह से ग्रीट करना है। ओके। ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू ग्रीट, उसका भी हमें सवाब मिलता है। ओके। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। इज देयर एनी डाउट? Understood, ma'am. Sorry? I understand, ma'am. MashaAllah. Is there any doubt? No, ma'am. Okay. Okay, so let us end up. In our last week, हमने next 5 names of Allah cover किए थे, and we have already completed with 40 names of Allah till now. Today we are going to see the next 5 names of Allah that are mentioned in, sorry, the next 5 names of Allah that are
There again, I am sharing my screen with you. I hope my screen is visible. Now, next 5 names हम देखेंगे अलग. Okay, the first name for today is okay. So the first name for today is Al Jalil. If you are having book and pen, you can note it down, or else I will send the picture in the group. From there also you can learn. Okay, Al Jalil, that is the majestic. The next name, the second name which we are going to learn today is Al Kareem, the most generous, the most esteemed. Third name which we are going to learn today is Ar-Raqib, the watchful, the one who is seeing everything, the one who is aware of all what we are doing. Ar-Raqib. The fourth name for today is Al-Mujib, the responsive one, the one who always responds. Correct? Al-Wasi, the all-encompassing, the boundless. Okay? What are the 5 names? Al-Jalil, Al-Kareem, Al-Raqib, Al-Mujib, and the last one is Al-Wasi. These are the next 5 names. Okay, so I hope you understood. Yes, ma'am. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ पढ़ लेते हैं. रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kaseera. Take care of yourself. Take care of your parents as well. Jazakallahu khairan, ma'am. Wayakum.